Hello everyone. Let's start the Van Hoff factor, the last topic of this chapter, solution. There are three formulas for the Van Hoff factor. The first one is number of moles after dissociation or association upon number of moles before dissociation or association. Let's see one example of KCl. We know that in water KCl forms two particles. So number of particles in water is 2 to the number of particles when it is alone or in solid state. So it is 1. So the Van Hoff factor is going to come 2. It is true only in the case when the KCl is 100% dissociated. In case it is not 100% dissociated, we have to use the degree of dissociation that we will see further. Second formula is observed colligative property to the calculated colligative property. That also we will see in next example. And the third one is normal molar mass upon abnormal molar mass. For example, we know that the molar mass of KCl is 74.5, but as we have seen in the last video, it was going to come 37.25. So यहाँ पर Van Hoff factor कितना होगा इसका 2. Similarly, in case of the acetic acid, its normal molar mass is 60, while the abnormal was found to be 120. So यहाँ पर कितना होगा? Degree of association will be Van Hoff factor will be 0.5. Okay, so now we are going to see how the Van Hoff factor correct the formulas of the colligative properties. Let me take one example. For example, if I add 1 mole of KCl in water, okay, now you must be knowing 1 मोल KCl को वाटर में ऐड करने पर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए वो 0.52 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज होना चाहिए. ठीक है, लॉजिकली. बट अगर इसमें डिसोसिएशन हुआ तो बिकॉज ऑफ द डिसोसिएशन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बिकम डबल. अगर पार्टिकल्स का नंबर डबल हो गया तो 2 मोल्स के लिए इतना इंक्रीज होगा. तो यहाँ पर जो डेल्टा टी बी होगा, अगर हम लोग फॉर्मूला लेते हैं इक्वल्स टू के बी इंटू मोलैलिटी, यहाँ पर क्या होगा कि जो 0.52 होना चाहिए था बिकॉज ऑफ 1 मोल, अब वो 0.52 होने की बजाय 1.04 होगा. कितना होगा? 1.04. 1.04 होने की वजह से इफ वी ओपन दी मोलैरिटी फॉर्मूला, इट्स WB इंटू 1000 अपॉन MB into WA. If I take KB of water 0.52, if I add 74.5 gram of the KCl in water, and if I take the mass of water that is 1000 grams, and if I need to find out the MB, let's see what should be the MB. In this case ये और ये cancel हो गया, and जो MB आएगा that is going to come 37.25, which is wrong. We know that. So एक्चुअल में ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना था? 1.04. डेफिनेटली हमको पता है कि अगर 1 मोल को ऐड करने पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 0.52 से बढ़ता है तो 2 मोल पार्टिकल्स ऐड हुए हैं तो 1.04 से बढ़ना चाहिए था. लेकिन हमने जब फॉर्मूले में इसको यूज़ करके मोलर मास निकालना चाहा तो ये कितना आ रहा है? 37.25. Now if I use Van Hoff factor, then what will happen? If I use Van Hoff factor, delta TB equals to I into KB into molality, remaining thing will be same, but the Van Hoff factor का वैल्यू 2 आ जाएगा. तो ये जो डेल्टा TB है ये तो 1.04 हुआ, लेकिन Van Hoff factor 2 होने की वजह से कहाँ गया? यहाँ आ गया, और ये KB into M आ जाएगा. इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा? 0.52 इक्वल्स टू KB into M. और अगर हम लोग को 0.52 मिलता है तो डेफिनेटली जो वैल्यू आने वाला है MB का यहाँ पर वो कितना आएगा? वो आएगा 74.5 ग्राम पर मोल. So what you have seen after putting the Van Hoff factor in the colligative property formula, the correction in the molar mass can be easily done. So this is the purpose of using Van Hoff factor. Okay, so one more thing I was telling you, I will explain you the second formula, that is observed colligative property actually कितना था? 1.04. और अगर हमको ये पता नहीं होता कि KCl डिसोशिएट होता है तो उसका वैल्यू 0.52 आता. उसका वैल्यू कितना आता? 0.52. सो यहाँ पे ये कितना आने वाला है? इट इज़ गोइंग टू कम 2. सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा.
Okay, then we see the next part, the last part of this event of factor. Now in case of dissociation, क्या होता है? सपोज करो आई हैव टेकन अ सॉल्ट AB. ओके, AB डिसोशिएट होगा किसमें? A पॉजिटिव में और B नेगेटिव में. क्लियर है? अब इसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? 1. बिफोर डिसोसिएशन ये 0 फॉर्म हुआ है. आफ्टर डिसोसिएशन क्या होगा? 1 में से अल्फा ब्रेक हो जाएगा, तो इट विल बिकम अल्फा एंड इट विल बिकम अल्फा. ओके, नाउ दिस इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन एंड दिस इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिस इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन. आफ्टर डिसोसिएशन इतने पार्टिकल्स हमारे सोल्यूशन में रहेंगे. ओके, और ये पार्टिकल्स क्या होगा? ये होगा बिफोर डिसोसिएशन. बिफोर डिसोसिएशन. अब जो हमारा फॉर्मूला है I इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, वो हमें यहाँ पे यूज करना है. ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो मैंने 2 अल्फा लिए हैं, अगर सॉल्ट केवल 2 पार्टिकल्स ब्रेक होता है तो हमें अल्फा अल्फा लेना पड़ेगा. बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सॉल्ट सिर्फ 2 पार्टिकल्स में ब्रेक हो. वो 3 अल्फा भी हो सकता है, 4 अल्फा भी हो सकता है. सो इट्स बेटर टू टेक एन अल्फा. सो यहाँ पर हम लोग 1 माइनस अल्फा देन प्लस हम लोग यहाँ पर एन अल्फा लेंगे. ओके, और यहाँ कितना आ जाएगा? 1. देन वी विल सॉल्व दिस फॉर्मूला. तो I इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा बन जाएगा. देन यहाँ पर हम लोग 1 प्लस एन अल्फा माइनस अल्फा करेंगे. दिस इज I. 1 को यहाँ ले जाएंगे तो I माइनस 1 हो जाएगा, और इसमें से हम लोग n को कॉमन ले लेंगे, सॉरी अल्फा को कॉमन ले लेंगे, तो अल्फा इक्वल्स टू n माइनस 1 हो जाएगा. तो फाइनली अल्फा कितना आएगा? अल्फा इज गोइंग टू कम I माइनस 1 के अपॉन में n माइनस 1. दिस इज द फॉर्मूला वी यूज फॉर द डिसोसिएशन. यहाँ पे अल्फा क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो 1 से ऊपर कभी नहीं होगा. I इज वेंट ऑफ फैक्टर, और n इज द नंबर ऑफ द पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन. फॉर एग्जाम्पल if I take AlCl3, if AlCl3 is 50% dissociated, then calculate I. तो हम लोग करते हैं, चलिए. अल्फा कितना हो जाएगा? 0.5. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज परसेंटेज अपॉन 100 इक्वल्स टू I माइनस 1. देन यहाँ पे n कितना होगा? AlCl3 में कितने पार्टिकल्स होंगे? Al1 एंड Cl के कितने पार्टिकल्स हैं? 3. सो टोटल पार्टिकल्स कितने हो गए? 4. तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1. दिस इज 3 इंटू 0.5 इज 1.5 इक्वल्स टू I माइनस 1. तो यहाँ पे I कितना आएगा? I इज गोइंग टू कम 2.5. सो इन दिस वे वी कैलकुलेट द वेंट ऑफ फैक्टर. ओके, यू कैन सी नाउ द लास्ट इज सेकेंड, द एसोसिएशन. लास्ट टॉपिक, एसोसिएशन में क्या होता है? द फॉर्मूला इज लाइक दिस. वी यूज अल्फा इक्वल्स टू I माइनस 1 देन 1 अपॉन n माइनस 1. Now this n for dimer is 2, for trimer it is 3, for tetramer it is 4. Clear है? Then suppose I take one of the example. Suppose we take benzoic acid C6H5COOH. Benzoic acid forms dimer and it is 25% associated. So calculate वेंट ऑफ फैक्टर. सो करते हैं, तो अल्फा इक्वल्स टू क्या हो गया? I माइनस 1 के अपॉन में कितना आ जाएगा? डायमर के लिए 2 हो जाएगा माइनस 1. अल्फा कितना है? अल्फा इज 0.25, तो 0.25 इक्वल्स टू I माइनस 1. यहाँ पे माइनस 0.5 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पे इट इज माइनस 125 इक्वल्स टू I माइनस 1. यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो I इज गोइंग टू कम 0.875. सो यहाँ जो 0.875 है ये क्या है? इट इज द वेंट ऑफ फैक्टर फॉर एसोसिएशन. ध्यान रखना, फॉर dissociation I is always more than 1 and for association I is always less than 1. ठीक है. then in all formula now we have to use I. जब भी आपको किसी भी न्यूमेरिकल में कोई भी सॉल्ट देंगे या कोई भी इलेक्ट्रोलाइट देंगे तो आपको हर फॉर्मूलेज में क्या यूज करना है? आपको I यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, WB अपॉन MB इंटू WA, और ऊपर MA आ जाएगा. ठीक है. फर्स्ट if we talk about the depression, freezing point and elevation of boiling point, to delta TB is equals to I into KB into M.
then third is delta TF equals to I into KF into M, and the last is the osmotic pressure, तो pi equals to ICRT। तो ये चारों फॉर्मूलेज में हम लोग क्या करेंगे, करेक्शन टर्म करेंगे। आप इन सबको नोट कर लीजिएगा, एंड इन केस ऑफ एनी क्वेरी यू जस्ट आस्क मी। थैंक यू।